Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, today it's a English language turn, so we will read today English language in our today's class. And students, today we are going to start a new chapter of our English language book Cornerstone, and the number of this new chapter is chapter 3. And the name of this chapter is types of sentences. So students, today we will read chapter 3 types of sentences, and included this chapter 3 types of sentences we will read about types of sentences, and after that we will read some rules of sentences. Okay, and last we will read and solve exercise E, answer the following questions of the chapter 3 in our Fair English Language notebook in our today's class. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read a very important topic of our English language book. Okay, types of sentences. It's a really very important topic. Okay, so all students look at the page number 6. Chapter number is chapter 3, and the name of the chapter is types of sentences. Okay, so students, we have learned that a group of words that makes complete sense is called a sentence. Okay, so students, अपने लास्ट वीडियो में हम रीड कर चुके हैं कि एक शब्दों का एक समूह जो एक कंप्लीट सेंस रखता है, एक पूरा अर्थ रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस, वाक्य. ओके, एंड टुडेज आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य. टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, इट्स मीन वाक्यों का प्रकार. ओके, सो स्टूडेंट्स, firstly we can see that in this chapter 3 here are exercise O. Okay, so students, we will definitely solve this exercise O, but not right now. We will solve this exercise O in our next video, because today we will read firstly types of sentences. Okay, with its function example, and after student, when we have learned to types of sentences, its function, and with example, okay, rules of sentences, then we will solve exercise O in our next video. Okay, so students, look at this. We have learned that a group of words that makes complete sense is called a sentence. Okay, we means हम have it so present perfect tense in pro form. learnt means याद कर चुके. learn it's the third form of learn. learn means याद करना, learnt means याद कर चुके. that means कि a group of words, शब्दों का एक समूह. that means जो, makes means बनाता है, complete means पूरा, sense means अर्थ. okay, it means है, called means कहते, a means एक, sentence means वाक्य. okay, we have learned that a group of words that makes complete sense is called a sentence. हम सीख चुके हैं, हम याद कर चुके हैं कि शब्दों का एक समूह जो एक पूरा अर्थ बनाता है, वाक्य कहलाता है. ओके, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस, वाक्य. ओके, और स्टूडेंट, वी हैव लर्न इट. ओके, हम लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दीज सेंटेंसेस. ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स मीन्स प्रकार, काइंड्स एंड टाइप्स बोथ आर सेम. ओके, सो काइंड्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स के, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ वाक्य के 4 प्रकार हैं. ओके, तो वाक्य के 4 प्रकार होते हैं. Study this table to understand the function of these sentences. Function it's mean होता है फलन. Okay, so students, study this table. Okay, it's mean कि study this table to understand the function of these sentence. इस टेबल की स्टडी करिए, के फंक्शन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इन वाक्यों के फंक्शन को, फलन को समझने के लिए इस टेबल का, इट्स मीन टेबल मीन्स तालिका. ओके, इस तालिका का अध्ययन करिए. ओके, इस वाक्यों के फंक्शन इट्स मीन फलन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए तालिका का अध्ययन करें, टेबल को अंडरस्टैंड करें. ओके, सो लेट्स सी टेबल. योर फर्स्ट नंबर कॉलम इज टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, टाइप ऑफ सेंटेंस इट्स मीन वाक्य का प्रकार. ओके, योर नेक्स्ट कॉलम इज फंक्शन. फंक्शन मीन्स फलन. ओके, एंड योर लास्ट कॉलम इज एग्जाम्पल, उदाहरण. ओके, सो लेट्स सी. योर फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं सकारात्मक या साधारण. सेंटेंस मीन्स वाक्य. असर्टिव सेंटेंस इट्स मीन होता है सकारात्मक या साधारण वाक्य. सो स्टूडेंट, द फंक्शन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस सिंपली स्टेट समथिंग. ओके, सिंपली मीन्स सरलता से, स्टेट्स मीन्स निर्धारित करता है, प्रकट करता है, समथिंग मीन्स कुछ. ओके, सिंपली स्टेट समथिंग इट्स मीन्स सरलता से कुछ निर्धारित करता है, कुछ प्रकट करता है. तो स्टूडेंट, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, हमारे जो साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन होता है कि सिंपली स्टेट समथिंग. तो इनकी आइडेंटिफाई ये होती है, हम इन्हें ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे असर्टिव सेंटेंस है कि ये सिंपली स्टेट समथिंग करेंगे, ये सरलता से कुछ निर्दिष्ट करेंगे, कुछ प्रकट करेंगे. ओके, एंड लेट्स से एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंस. जैस किक द बॉल. ओके, जैस किक मीन्स लात मारी. किक इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ किक. ओके, किक मीन्स लात मारा, किक मीन्स लात मारी, द बॉल मीन्स गेम. ओके, जैस किक द बॉल. जैस ने
गेंद को लात मारी. ओके, so students, just kick the ball, it's your assertive sentence. And students, we also call assertive sentence declarative sentence और statement. हम assertive sentence को declarative sentence और statement भी बोलते हैं. ओके, declarative sentence इट्स मीन कथात्मक वाक्य और statement मीन्स कथन. सॉरी, statement मीन्स कथन. ओके, सो assertive sentence के हमारी assertive sentence के टू और नेम होती है. क्या होता है? declarative sentence and statement. क्लियर? So students, let's see second type of sentence. Your second type of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence it's mean होता है प्रश्नवाचक वाक्य. Okay, so students, the function of this second type of sentence, interrogative sentence, is ask questions. Okay, ask means पूछता है, questions means प्रश्नों को. Okay, ask questions it's mean प्रश्नों को पूछता है. तो students, कोई sentence है उसको आइडेंटिफाई हम ऐसे करेंगे कि interrogative है कि नहीं, कि वो अगर कोई sentence क्वेश्चन आस्क कर रहा है. ओके, प्रश्न पूछ रहा है, तो वो हमारा क्या कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा. ओके, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. योर एग्जांपल इज दैट एन ऑस्ट्रिच. ओके, ऑस्ट्रिच, हियर द मीन ऑफ ऑस्ट्रिच मीन होता है शुतुरमुर्ग. ओके, इज दैट एन ऑस्ट्रिच इट्स मीन क्या वह एक ऑस्ट्रिच है, क्या वह एक शुतुरमुर्ग है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी third number type of sentence. Your third number type of sentence is imperative sentence. Imperative sentence, here the meaning of imperative sentence that आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य. Okay, let's see function of imperative sentence. Gives orders, commands, makes requests or give advice. Okay, तो gives orders, ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है. commands, here the meaning of orders या commands means होता है आज्ञा देना है, orders means होता है आज्ञा, commands means होता है आदेश. Okay, गिव्स ऑर्डर्स, कमांड्स. ओके, इट्स मीन आज्ञा देता है, आदेशों को देता है. मेक्स रिक्वेस्ट. ओके, इट्स मीन कि अनुरोध करता है. मेक्स रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध करता है, विनती करता है. और गिव्स एडवाइस, और एडवाइस देता है. एडवाइस मीन्स सलाह या सुझाव. ओके, तो ऐसे सेंटेंस है जो ऑर्डर दे, कमांड दे या रिक्वेस्ट मेक करे या एडवाइस दे, वो हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. ओके, ऐसे वाक्य जो आज्ञा दे या आदेश दे या अनुरोध करे, विनती करे या सलाह दे, सुझाव दे. ओके, तो वो हमारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य. ओके, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर एग्जांपल इज सिट डाउन. ओके, इट्स इन बैठ जाइए. सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर एग्जांपल गिव अस अ कमांड. एक कमांड दे रहा है, सिट डाउन जो हमारा सेंटेंस है. ओके, बैठ जाइए. कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है. ओके, सिट डाउन, बैठ जाइए. तो ये कमांड दे रहा है. ओके, सो इट्स योर इंपरेटिव सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस सिट डाउन गिव अस अ कमांड. ये हमें कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. योर सेकंड नंबर एग्जांपल इज पास मी दैट बुक प्लीज. ओके, प्लीज मीन्स कृपया. ओके, एंड ये जो वर्ड होता है ना प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट को शो करता है, विनती को शो करता है, अनुरोध को शो करता है. पास मी दैट बुक प्लीज़ इट्स मीन कृपया मुझे वह बुक दे दीजिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इट्स इंपरेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज़ रिक्वेस्टिंग. ये रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, अनुरोध कर रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड, लुक एट द पेज नंबर 7 and let's see four type of sentence. Your last four type of sentence is exclamatory sentence. Okay, so students, here the meaning of exclamatory sentence. Exclamatory sentence means होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि या भावबोधक वाक्य. ओके, द फंक्शन ऑफ अवर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओके, तो ये जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को. ओके, इट्स मीन कि एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मीन्स हो कहता है फ्रेंड्स कि ये एक तीव्र फीलिंग्स को, तीव्र अनुभवों को व्यक्त करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स एग्जांपल ऑफ exclamative sentence. Sorry students, firstly look at this look at this example of imperative sentence. Okay, so students, look at the third number example of imperative sentence. Okay, and after student we will read exclamative sentence. Okay, so let's see. Your third number example is wear your pearl earrings with that dress. Okay, wear means पहनो, your means अपनी, pearl means मोती की. Okay, earrings means होता है, here the meaning of earrings. Okay, earrings means होता है झुमका या बाली. with that dress. Okay, इस पोशाक के साथ. ओके, तो वेयर योर पेरल इयरिंग विद दैट ड्रेस इट्स मीन इस पोशाक के साथ अपनी मोती वाली झुमके या मोती वाली बाली पहनो. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर एग्जांपल is give us a advice. Okay, so students, this example, this sentence is a imperative sentence because this sentence give us a advice. ये हमें advice दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं. ओके, कि इस ड्रेस के साथ, इस पोशाक के साथ अपनी मोती वाली झुमके या बाली पहनो. ओके, so students, now let's see four number type of sentence. Your four number type of sentence is exclamatory sentence. It's mean students, here the meaning of exclamatory sentence that विस्मयादि बोधक या भावबोधक वाक्य. Okay, so students, the function of exclamatory sentence is expresses strong feelings. Okay, strong feelings को express करता है.
तीव्र अनुभवों को, तीव्र एहसासों को व्यक्त करता है. ओके, लेट्स एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट अ लवली प्लेस दिस इज. ओके, व्हाट मीन्स क्या, मीन्स एक, लवली मीन्स प्यारा, प्लेस में स्थान, दिस मीन्स यह, इट मीन्स है. व्हाट अ लवली प्लेस दिस. ओके, इट्स मीन ये कितनी प्यारी जगह है, कितना प्यारा स्थान है. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इनका एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से. ओके, एंड से हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ओके, जिन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, उनका एंड होता है फुल स्टॉप से. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड होता है स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क से. क्लियर. सो स्टूडेंट, ऑल दीज वी हैव रीड ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: assertive sentence, interrogative sentence, third imperative sentence, and last exclamative sentence. Okay, now let's see some rules of types of sentences. Okay, declarative sentences are also known as assertive sentences or statements. Okay, so all these are noted point. So look clearly. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इट्स मीन कथात्मक वाक्य. आर मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, नून मीन्स जानते, एज मीन्स रूप में. असर्टिव सेंटेंस है, इट्स मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, और मीन्स या स्टेटमेंट मीन्स कथन. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट. इट्स मीन कथात्मक वाक्य को सकारात्मक या स्वीकारात्मक या कथनों के रूप में भी जानते हैं. ओके, तो डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव भी बोलते हैं और स्टेटमेंट से बोलते हैं. स्टेटमेंट्स में होता है कथन, एंड असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर नोटेड पॉइंट. योर सेकंड नंबर नोटेड पॉइंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप. जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनका एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है. कथात्मक वाक्य हो गए या आदेशात्मक वाक्य हो गए, वो इनका एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से इनका एंड होता है. ओके, पूर्ण विराम से. फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम. Let's see third number noted point. Your third number noted point is interrogative sentences and in a question mark. Okay, very simple ये interrogative sentence होते हैं. ओके, कोई भी क्वेश्चन अगर कोई सेंटेंस कर रहा है, ऐसा किसी सेंटेंस को देख कर लगे क्वेश्चन करे, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह से होते हैं. ओके, लेट्स सी 4 नंबर सेंटेंस. यो 4 नंबर सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ओके, इट्स मीन हो गया कि विस्मयादि बोधक या भावबोधक जो वाक्य होते हैं उनका एंड किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क इट्स मीन हो गया कि विस्मयादि बोधक चिन्ह या भावबोधक चिन्ह. ओके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क से हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका एंड होता है. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में हम किसका कौन से मार्क का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का. ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स होता है विस्मयादि बोधक या भावबोधक वाक्य. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी some important points. Sometimes a sentence may be made up of just one word. Okay, stop, leave, run. Okay, तो sometimes means कभी कभी a sentence means एक वाक्य may be made up. Okay, बन सकता है just सिर्फ. Okay, one word means एक शब्द. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कभी कभी एक वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना हो सकता है. ओके, सिर्फ एक वर्ड से, एक शब्द से एक सेंटेंस बन सकता है, एक वाक्य बन सकता है. हाउ कैन यू इमेजिन. ओके, लेट्स सी, जैसे आपका फर्स्ट नंबर हो गया स्टॉप, रुको. ओके, तो अगर आप किसी से बोलोगे स्टॉप, रुको, ओके, तो एक वर्ड है बट इसका एक कंप्लीट मीन निकल है ना, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस है. क्लियर. सेकंड है लीव, इट्स मीन छोड़ दो. ओके, चले जाओ. सो स्टूडेंट्स, वन वर्ड है बट इट गिव्स अ कंप्लीट मीन दे रहा है. ओके, तो इट्स अ सेंटेंस. रन, इट्स मीन दौड़ो. ओके, अगर आप किसी से बोलोगे रन, दौड़ो, ओके, तो ये कंप्लीट मीन दे रहा है ना. ओनली वन वर्ड है तो क्या हुआ, बट ये कंप्लीट मीन दे रहा है. ओके, तो समटाइम्स अ सेंटेंस मे बी मेड अप ऑफ जस्ट वन वर्ड. ओके, इट्स मीन कभी कभी एक वाक्य, एक सेंटेंस सिर्फ एक वर्ड, ओके, सिर्फ एक शब्द से बना हो सकता है. ओके, ऑल दीज आर वन वर्ड सेंटेंसेस. ये सारे एक शब्द वाले वाक्य हैं एंड दे गिव कमांड्स. और ये क्या कर रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं. ओके, आदेश दे रहे हैं कि स्टॉप, रुको, लीव, जाओ, छोड़ दो. ओके, रन, इट्स मीन दौड़ो. हेंस इट्स प्रकार वी सी दैट, हम देखते हैं कि द वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस. कि वर्ब होता है वो सेंटेंस का हार्ट होता है. ओके, मेन पॉइंट होता है. ओके, हार्ट मीन्स दिल. ओके, हृदय. तो जो एक वर्ब होता है वो सेंटेंस का हार्ट होता है. वी कैन से दैट वी सी दैट द वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का एक हार्ट होता है, क्रिया वाक्य का एक हृदय होता है. क्लियर. एंड इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है टू राइट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा विदाउट अ वर्ब. ओके, एक वर्ब के बिना. ये असंभव है कि एक वर्ब के बिना एक सेंटेंस राइट डाउन करना. ओके, एक क्रिया के बिना एक वाक्य लिखना असंभव है, इम्पॉसिबल है. ओके, सो लेट्स सी समटाइम्स. ओके, कभी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैन
can also end in a exclamation mark. Okay, if the command is forceful. Okay, तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, कैन आल्सो एंड इन एक्सक्लामेशन मार्क. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं मोस्टली वही एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होता है उनका, है ना. जो हमारे विस्मयादिबोधक या भावबोधक वाक्य होते हैं उन्हीं का तो एंड एक्सक्लामेशन मार्क से होता है ना. लेकिन कभी कभी जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका एंड किससे होना होता है, फुल स्टॉप से, बट कभी कभी उनका एंड किससे होता है, एक्सक्लामेशन मार्क से होता है. एंड कब होता है स्टूडेंट्स, इसका एक रीज़न होता है, कंडीशन होती है कि इफ़ द कमांड इज़ फोर्सफुल. अगर कमांड कैसी हो, फोर्सफुल हो. ओके, अगर आदेश कैसा हो, फोर्सफुल हो. फोर्सफुल में सशक्त हो, प्रभावशाली हो. ओके, यदि आदेश प्रभावशाली या सशक्त हो तो हमारे जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, हमारे जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स सी स्टॉप, रुको. ओके, तो अगर कमांड फोर्सफुल है ना, स्टॉप, रुको, तो ये उसका एंड वी कैन सी इन दिस वर्ड. ओके, इसका एंड कैसे हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क से हो रहा है इम्परेटिव सेंटेंस, कमांड दे रहा है बट इसका फोर्सफुल जो कि कमांड है तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से इसका एंड हो रहा है. गो अवे. ओके, हियर द मीनिंग ऑफ गो अवे. गो अवे मीन्स चले जाओ, भाग जाओ. ओके, तो इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कर रहा है. ओके, एक इम्परेटिव सेंटेंस है और आदेश दे रहा है, कमांड कर रहा है, बट इसका बहुत ही फोर्सफुल कमांड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एंड किससे हो रहा है, इसका है तो इम्परेटिव सेंटेंस ही है ना, स्टॉप गो अवे इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि वो कमांड करे, बट इनका एंड जो होगा वो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड इट्स नोटेड पॉइंट एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल these types of noted point and all these types of sentences. Now we are going to read and solve exercise. Student, we will read and solve exercise in our next video. Okay, so let's see. Firstly, we are going to read and solve exercise A of chapter 3 in our Fair English language notebook. So let's see. Chapter 3, chapter name is types of sentences. वाक्यों के प्रकार. Let's see exercise A. Your exercise A is answer the following questions. Okay, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Let's see question number first. Your question number first is how many kinds of sentences are. वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं. Okay, kinds means प्रकार. Okay, your first number answer is there are 4 kinds of sentences. वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, वाक्यों के 4 प्रकार हैं. Okay, your first number type of sentences, assertive sentences or declarative sentences और statements. Okay, assertive sentences इट्स मीन होता है स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य. declarative sentences इट्स मीन कथात्मक वाक्य. और मीन्स या statements मीन्स कथन. ओके, कथन. तो assertive sentences, declarative sentences या statements, ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है सेंटेंस का. ओके, इट्स मीन हो गया, लिसन कर लिया, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य. ओके, ये हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस का हिंदी में. डिक्लेरेटिव का होता है कथात्मक वाक्य, स्टेटमेंट का होता है कथन. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर काइंड ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट्स मीन होता है प्रश्नवाचक वाक्य. ओके, जो क्वेश्चन करते हैं. थर्ड नंबर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंस इट्स मीन आदेशात्मक वाक्य. ओके, जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस करते हैं. यो 4 नंबर kinds of sentences, exclamatory sentences. It's mean विस्मयादि या भावबोधक वाक्य. Okay, so students, all these are kinds of sentences. Okay, let's see question number second. Your question number second is what is an assertive sentence or a declarative sentence. Okay, एक असर्टिव सेंटेंस, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस या वी कैन से दैट एक स्टेटमेंट क्या है. ओके, एक सकारात्मक या स्वीकारात्मक ओके वाक्य या एक कथात्मक वाक्य क्या है. असर्टिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य. डिक्लेरेटिव मीन्स जो डिक्लेयर करता है. ओके, डिक्लेयर मीन्स होता है जो घोषणा करता है. इट्स मीन जो कथनात्मक होता है, कथनात्मक. ओके, स्टेटमेंट मीन्स होता है स्टेटमेंट से कथन. ओके, और डिक्लेरेटिव मीन्स कथात्मक. तो एक असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, एक स्वीकारात्मक या सकारात्मक या कथात्मक या कथन क्या है. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सेकंड. योर आंसर नंबर सेकंड इज अ सेंटेंस दैट सिंपली सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, अ सेंटेंस एक वाक्य दैट मीन्स जो सिंपली मीन्स साधारणता या सिंपल तरीके से. ओके, सीधे तरीके से. सेस मीन्स कहता है, और मीन्स या. ओके, स्टेट मीन्स निर्दिष्ट करता है, प्रकट करता है. समथिंग मीन्स कुछ. ओके, इज मीन्स है, कॉल मीन्स कहते हैं. एंड असर्टिव इट्स मीन एक सकारात्मक या एक स्वीकारात्मक, और मीन्स या. डिक्लेरेटिव इट्स मीन एक कथात्मक सेंटेंस मीन्स वाक्य. ओके, अ सेंटेंस दैट सिंपली सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, इट्स मीन एक वाक्य. ओके, एक वाक्य जो साधारणता या सीधे तरीके से, या बोल सकते हैं सिंपली मीन्स कि सरल तरीके से. ओके, एक वाक्य जो सरल तरीके से या सीधे तरीके से या साधारणता. ओके, साधारणता कुछ कहता है, कुछ प्रकट करता है या कुछ निर्दिष्ट करता है. सकारात्मक. ओके, सकारात्मक या स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य कहलाता है. ओके, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट, ये तीनों टाइप एक ही प्रकार के होते हैं. ये तीनों वर्ड एक ही है. ओके, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट तीनों एक ही है. ओके, ये तीनों सेंटेंस का फर्स्ट टाइप ही है. ओके, सो
Let's say example of assertive sentence, or we can say that declarative or statement. Okay, your example is Jazz kicked the ball. Okay, Jazz ने ball को लात मारी. Kick means लात मारी. Kicked is the second form of kill. Okay, kick. Okay, kick means लात मारना. Kicked means लात मारी. Kicked, it's a second form of kick. Kick means लात मारना. Kick means लात मारी. Okay, let's say third number question. Your third number question is what is an interrogative sentence? एक प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, एक इंट्रोगेटिव वाक्य क्या है. Okay, तो थर्ड नंबर आंसर इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक वाक्य जो क्वेश्चन आस्क करता है, प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है. ओके, लेट्स एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और एग्जांपल इज दैट एन ऑस्ट्रिच. ओके, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग. ओके, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वर्ड. ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग. इज दैट एन ऑस्ट्रिच? इट्स मीन कि क्या वह शुतुरमुर्ग है. ओके, क्या वह एक शुतुरमुर्ग है. ओके, लेट्स सी योर स्टूडेंट्स. फोर नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. एक इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, एक आदेशात्मक वाक्य क्या है. योर फोर नंबर आंसर इज अ सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर्स, कमांड्स, कॉमा मेक्स रिक्वेस्ट्स और गिव्स एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, अ सेंटेंस एक वाक्य दैट मीन्स जो गिव्स मीन्स देता, ऑर्डर्स मीन्स आज्ञा. ओके, ऑब्लिक मीन्स होता है या, कमांड्स मीन्स आदेश. ओके, मेक्स रिक्वेस्ट अनुरोध करता है, विनती करता है. ओके, और मीन्स या, गिव्स मीन्स देता है, एडवाइस मीन्स सलाह या सुझाव, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स एक आदेशात्मक वाक्य. ओके, एक वाक्य जो आज्ञा देता है, आदेश देता है या अनुरोध करता है. ओके, या सुझाव या सलाह देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं. ओके, आई रीड अगेन. एक वाक्य जो आज्ञा या आदेश देता है, अनुरोध या विनती करता है, सुझाव या सलाह देता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. इट्स मीन आदेशात्मक वाक्य कहलाता है. लेट्स सी फर्स्ट नंबर एग्जांपल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. और फर्स्ट नंबर एग्जांपल इज सिट डाउन, बैठ जाइए. ओके, कमांड दे रहे हैं ना. ओके, दिस फर्स्ट नंबर एग्जांपल गिव अस अ कमांड. एक हमें कमांड दे रहा है. ओके, कमांड दे रहा है कि सिट डाउन, बैठ जाइए, आदेश दे रहा है. ओके, तो इट्स अ इम्पेरेटिव सेंटेंस. इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. लेट्स सी सेकंड नंबर एग्जांपल. ये सेकंड नंबर एग्जांपल इज पास मी दैट बुक प्लीज. ओके, प्लीज मीन्स कृपया. ये जो वर्ड होता है ना प्लीज, ये रिक्वेस्ट को शो करता है, विनती को शो करता है. हम अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं. ओके, छोटे को ऑर्डर देते हैं ना, तो जब बड़ों से कुछ बोलते हैं तो प्लीज़ का यूज़ करते हैं. ओके, तो पास में दैट, वैसे बड़े हो या छोटे हो, कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करते तो प्लीज़ का ही यूज़ करते हैं. क्लियर. पास में दैट बुक प्लीज़. ओके, इट्स मीन कृपया मुझे वह बुक पास कर दीजिए, मुझे वह बुक दे दीजिए. ओके, योर सेकेंड नंबर एग्जाम्पल इज गिविंग इज सो अस अ रिक्वेस्ट. एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है. ओके, हमें एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, जो प्लीज़ वर्ड है रिक्वेस्ट को शो कर रहा है. तो स्टूडेंट इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, या एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक आदेशात्मक वाक्य. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज वियर योर पेयर इयररिंग्स विद दैट ड्रेस. ओके, इट्स मीन कि इस पोशाक के साथ, इस ड्रेस के साथ, ड्रेस मीन्स होता है पोशाक. और ओके, इस ड्रेस के साथ, इस पोशाक के साथ अपने मोती वाली झुमके या मोती वाली बाली पहनो. ओके, इयररिंग्स मीन्स होता है स्टूडेंट बाली या झुमके. ओके, सो स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर एग्जांपल इट्स सो एन एडवाइस. ये एक एडवाइस को शो कर रहा है. ओके, इट्स सो एन एडवाइस. एडवाइस को एक सुझाव को, एक सलाह को शो कर रहे हैं. क्लियर. तो इट्स एन आल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है. लेट्स सी फाइव नंबर क्वेश्चन. फाइव नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. एक एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है, एक विस्मयादि बोधक या बहुबोधक वाक्य क्या है. जो फिफ्थ नंबर आंसर इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग. ओके, सडन फीलिंग इज स्टूडेंट स्टडी विद फॉरवर्ड. लेट्स सी कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. ओके, इट्स मीन कि एक वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या सडन फीलिंग को शो करता है. ओके, आ सेंटेंस में ए वाक्य दैट मीन्स जो एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करता है. ये ओके, आ स्ट्रॉन्ग इट्स मीन एक तीव्र, और मीन्स अथवा, सडन मीन्स अचानक या बोल सकते हैं हिंदी में आकस्मिक. ओके, फीलिंग्स मीन्स अनुभव, इज मीन्स है. ओके, कॉल्ड मीन्स कहते हैं. ओके, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इट्स मीन विस्मयादि या बहुबोधक वाक्य. ओके, तो इट्स मीन कि एक वाक्य जो तीव्र या आकस्मिक भाव को व्यक्त करता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. एक वाक्य जो तीव्र या आकस्मिक या अचानक भाव का बोध करता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट जैसे हमारे मोस्टली जो ऐसे वर्ड जो हमारे मोस्टली मतलब सडनली हमारे माउथ से निकल जाते हैं ना, जैसे ओ माय गॉड. ओके, एक्सीलेंट, हुर्रे, ओ सेट, है ना. ये जो वर्ड्स सडनली हमारे माउथ से निकल जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग करते हैं, वो हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स होते हैं. ओके, जैसे बोलते हैं ना वाओ, है ना, और हुर्रे. ओके, और ओ नो. ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमारे एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स होते हैं. ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं. लेट्स एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस व्हाट अ लवली प्लेस दिस इज. ओके, एंड इट्स मीन हो गया कि कितने प्यारा स्थान है ये. ओके,
कि ये कितना प्यारा स्थान है, कितनी अच्छी जगह है. ओके, व्हाट अ लवली प्लेस दिस इज. ओके, एंड स्टूडेंट्स जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इनका एंड किस होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं. वी कैन सी दैट दिस सेंटेंस एंड इन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सेंटेंस का एंड किससे हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क से हो रहा है. ओके, एंड इसका मीन क्या है कि व्हाट अ लवली प्लेस दिस इज. ओके, इट्स मीन कि ये कितनी प्यारी जगह है. ओके, लेट्स सी 7 नंबर क्वेश्चन. 7 नंबर क्वेश्चन इज विच सेंटेंसेस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क. कौन से सेंटेंस, कौन से वाक्य क्वेश्चन मार्क से एंड होते. ओके, किन वाक्यों का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होता है. योर 7 नंबर आंसर इज, sorry student, firstly look at this question number 6. Okay student, after it we will read and see question number 7. Okay, let's see question number 6. So question number 6 is which sentences and in a full stop. Okay, कौन सी सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड होते हैं, किन वाक्यों का अंत पूर्ण विराम से होता है. फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम. ओके, एंड दी सिंबल ऑफ फुल स्टॉप इज ओके पॉइंट. ये जो फुल स्टॉप का सिंबल होता है, इसका जो मार्क होता है वो क्या होता है, फुल स्टॉप का मार्क होता है पॉइंट, बिंदु होता है. ओके, विच सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप. ओके, कौन से वाक्यों का अंत फुल स्टॉप से होते हैं, पूर्ण विराम से होता है. ओके, योर 6 नंबर आंसर इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप. ओके, तो हमारे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं कथात्मक वाक्य होते हैं, और जो असर्टिव सेंटेंसेस, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, इम्परेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं, जो हमारे डिक्लेरेटिव होते हैं. डिक्लेरेटिव के साथ, डिक्लेरेटिव के इंक्लूडेड आपके असर्टिव और स्टेटमेंट्स भी आते हैं. ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसमें कथात्मक वाक्य. ओके, और जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं इट्स मीन आदेशात्मक वाक्य होते हैं. ओके, जो ऑर्डर करते, रिक्वेस्ट करते, एडवाइस करते. ओके, उनका एंड किसका होता है, फुल स्टॉप से होता है. तो हमारे ये 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जिनका एंड फुल स्टॉप से होता है, वो होते हैं डिक्लेरेटिव, इट्स मीन कथात्मक, और डिक्लेरेटिव के इंक्लूडेड आपका असर्टिव और स्टेटमेंट भी आएगा. ओके, और सेकंड हमारा होता है इम्परेटिव. तो ये जो डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका एंड होता है फुल स्टॉप से. कथात्मक और आदेशात्मक वाक्यों का अंत होता है फुल स्टॉप से, इट्स मीन पूर्ण विराम से. नाउ वी आर गोइंग टू लेट्स क्वेश्चन नंबर 7. ओके, योर क्वेश्चन नंबर 7 इज विच सेंटेंसेस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क. किन वाक्यों का अंत क्वेश्चन मार्क से साथ होता है, कौन से वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं. ओके, योर 7 नंबर आंसर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क. ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है. प्रश्नवाचक जिन के साथ किन सेंटेंसेस का अंत होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का. ओके, प्रश्नवाचक वाक्यों का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, प्रश्नवाचक जिन के साथ होता है. तो हम लोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनके साथ हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करते हैं. एंड इट्स अ मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क का मार्क होता है. ओके, 2 के बाद पॉइंट होते हैं ना, एक हुक के बाद एक हुक के बिलो पॉइंट होता है ना, उसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. ओके, और इसका यूज़ कब करते हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में करते हैं. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. लेट्स सी 8 नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है. ओके, योर 8 नंबर क्वेश्चन इज विच सेंटेंसेस एंड इन एक्सक्लेमेशन मार्क. किन वाक्यों का अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह से या बोधक चिन्ह से होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, तो हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से. हमारे जो विस्मयादि बोधक या भावबोधक वाक्य होते हैं उनका एंड किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से. ओके, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं जैसे वाओ, एक्सीलेंट, ओके, हुर्रे, ओ नो, ओ सिट, ओ माय गॉड. ओके, तो इन वाक्यों का ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, इनका एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से. ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. ये मार्क किसका है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है. ओके, एक स्टिक के बिलो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो स्टूडेंट्स we have solved this exercise A and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in any answer of this exercise A of chapter 3 because I have explained all answer of this exercise. Okay, so since today's your classwork is done, note on exercise A of chapter 3 in your Fair English Language notebook with your best handwriting. It's a today's classwork. And students, your homework is that learn exercise A, answer the following questions of chapter 3 from your Fair English Language notebook. It's a today's homework. Okay, so students, आपका क्लासवर्क है कि आपका एक्सरसाइज ए के सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे अपनी अच्छी से राइटिंग के साथ नोट डाउन करना है. इट्स अ टुडेज क्लास वर्क. आपका होमवर्क है कि सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं. एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चंस. क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं. आपका होमवर्क है अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास इन होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन एक्सरसाइज ए, answer the following questions of chapter 3 in your Fair English Language notebook and send me your work here. Thank you.